Now exercise 6.1, question number 1. Figure is given to you. This figure is given to you. In the figure, line AB and CD intersect O. यहाँ पे स्पेशल बोला है line increase angle AOB is 180 degree. Clear? If you are not given that it is a line, you cannot consider it as a straight line. Clear? So AB and CD both are lines. O is the point of their intersection. So first condition we are given AOC plus angle BOE, it is equal to 70 degree. AOC, this angle, plus BOD, ये वाला है, sorry BOE, not B. इन दोनों का टोटल आपके पास 70 डिग्री है. क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंड एंगल BOD is 40 degree. This angle is 40 degree. Find angle BOE. एक तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है BOE. उसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये वाला एंगल COE हो गया. जब आप इसको 360 में से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल COE. समझते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कहां से कहां तक होता है? इट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री. क्लियर? 180 और 360 के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है, ठीक है, आपके पास 180, सपोज ये एंगल है हमारे पास, लेट इट बी 60 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आपने निकालना है. रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये इधर वाला है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट जो है 180 से ग्रेटर और 360 से लेस हो. तो कैसे करते हैं? 360 माइनस दिस एंगल 60, तो वो 300 हो जाएगा इस क्वेश्चन के. और नाउ इसमें आपने सॉल्व करने हैं एंगल्स. आपको गिवन है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. ये दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो फटाफट हैंड रेज करिए कि हाउ टू फाइंड दिस. इट इज नॉट ए न्यू टॉपिक फॉर यू. इन दोनों का टोटल आपको 70 दिया है. लेट इट बी x एंड लेट इट बी y. क्लियर? सो हियर x plus y is equal to 70 degree. Given to you. And the second is ये angle 40 है. AB और CD both are intersecting lines, so we can say x is equal to 40 degree. What is the reason? Diametrically opposite angles. These are made by the intersecting lines AB and CD. So put this value in first equation. तो x की वैल्यू हमने 40 डाल दी, प्लस y is equal to 70, which implies y is equal to 70 minus 40. So y is equal to 30. ठीक है? From equation 1.
अब आपके पास y की वैल्यू भी मिल गई, आपको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट एंगल यू नीड BOE आपने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट यू रिक्वायर एंगल COE, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सी हियर थ्री एंगल्स, 1 2 3 एंगल्स आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपकी मर्जी है, यू कैन राइट x plus y plus this angle, ओके। अदरवाइज आप इन तीनों को ले सकते हो या फिर इन तीनों को भी ले सकते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन चलेगी जिसके आपको टू एंगल्स पता है और थर्ड आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो लेट इट बी एंगल दैट कर सकते हैं इसको हम। क्लियर? सो हियर AOB is a straight line because it is given AOB is a straight line, so sum of these three angles will be 180, which implies sum of these three angles, that is angle x plus y plus z is equal to 180, x plus y plus z. Clear? So reason is straight line, and you cannot write it as linear pair क्योंकि ये सिर्फ two angles में ही नहीं होंगे. You know the value of x plus y. You are given x plus y as 70 degree. 70 degree plus z is equal to 180 degree. So we can write the value of z. Sorry, it is yes 180 degree minus 70 degree. 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? एंगल z is equal to 110 degree. Now we have to find the reflex angle z. So here the reflex angle COE is equal to 360 degree minus angle z. आपके पास ये वाला एंगल z है, इस COE का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो वो कौन सा होगा? ये वाला कितनी वैल्यू आ जाएगी? 360 minus 110, so it will be 250. I hope it is clear to you all. So many ways are there to solve these type of questions. Should we start the next question? Question number 2. Again, figure is given to you, and it is given xy and mn intersect at O. इसका मतलब क्या है? xy is a straight line and mn is also a straight line. So draw the figures for question number 2. xy and the second is mn. xy and mn intersect at point O if POY is equal to 90 degree. यहाँ पे point P है vertically upon POY, that is 90 degree. पता है ना 90 डिग्री का सिंबल ऐसे डालते हैं. Question number 2. xy and mn intersect at angle POY is 90 degree.
A ratio B is 2:3. Find angle C. Angle C आपको find out करना है. This angle is A and B, and this angle is C. So it is not a difficult problem. I think you all can do this question. So how to start? A ratio B is 2:3, and the sum of these two angles plus angle POY is 180 degree. So XOY is a straight line. आपको given है XY means ये complete line है X से Y. Clear? XOY is a straight line. So we can say angle A plus B or angle B plus angle A plus angle POY is equal to 180 degree. Reason? Straight line angle. Angles on a straight line. So here B plus A as it is plus POY. It is given to you, it is 90 degree. Is equal to 180 because angle POY is equal to 90. We are given OP is perpendicular to OP जो है इसलिए perpendicular है. अगर perpendicular हुआ तो वो एंगल 90 डिग्री का होगा. उसके बाद हमें ये रेशियो गिवन है A रेशियो B is equal to 2:3. So we have B plus A is equal to 180 minus 90 will be 90 degree. Let it be number 1. A ratio B is equal to 2:3. Now from here you can use direct ratio method or you can convert A and B in terms of X. ठीक है, तो एक मेथड क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अगर आपने किया होगा तो A रेशियो B 2:3. अगर हम A ही वैल्यू फाइंड करना चाहें तो व्हाट इज द मेथड? जो ये रेशियो है A over B, रेशियो A कितना है 2, so it will be 2 over sum of ratios. Sum of ratios कितना हो जाएगा 2 plus 3 that is 5 into A plus B that is 90. क्लियर? अगर आपको वो मेथड बाद में डिस्कस करना है, पहले हम जिस मेथड से आप सिंपली इसको करते हो वो क्या है, लेट A is equal to, अब ये रेशियो 2:3 है, इसको हम सॉरी 2:3, let A is equal to 2x and B is equal to 3x. लिख सकते हैं ऐसे. Now substitute these values of A, B in equation number 1. A is equal to 2x, B is equal to 3x in equation number 1. बेटा जी यहाँ पे आपने ये मल्टीपल x अभी लेना है अगर बीच में कहीं पे x यूज नहीं हुआ हो. क्लियर? अदरवाइज यू हैव टू टेक सम अदर वेरिएबल. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सम ऑफ A and B is B plus A 90. So 3x plus 2x is equal to 90. From here 5x is equal to 90. So value of x कितनी हो जाएगी 80. साथ में क्या लगाना है 18 degree. Clear? Now we can write angle A and B. Angle A आपके पास कितना हो गया, that is 2x. So 36 degree and angle B is 3x. 18 is 54 degree. ठीक है, I hope up to here it is clear to you all.
x की वैल्यू आपके पास 18 डिग्री होगी, ठीक है। और अगर हम रेशियो वाला मेथड चूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आपको रेशियो कितनी है, 2:3 गिवन है, और सम ऑफ दीज a प्लस b हमें पता है कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, a रेशियो b हमारे पास कितना है 2:3 है, a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो a की रेशियो मेरे पास 2 ओवर सम ऑफ रेशियोस 5 इनटू सम ऑफ दीज क्वांटिटीज 90, so that is equal to 36 degree, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। Similarly, you can find the value of b. क्या मेथड है, a ratio of b 3 over sum of ratios, दोनों का टोटल 2 plus 3 5 into sum of these two quantities 90, ठीक है। तो you can use this method also, it is your wish कि आपने किस मेथड से। So we have found the value of a and b. अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so from here, अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी a और b की वैल्यू नहीं पूछी है, तो आप अकेले b की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, m o n is a straight line, m o n is a straight line, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल b plus c is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप रीजन लीनियर पेयर भी बोल सकते हो और आप इसका रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी बोल सकते हो, एनी ऑफ द रीजन यू कैन राइट। I have written linear pair because it is a pair of angle, two angles on a straight line. You know the value of b, you can find c, 180 minus b, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री minus 54. So find out this answer. 10 minus 2 is 6, here 7 minus 5, 2 and 1 as it is, 126. और अगर आपने कोई और मेथड चूज करना है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, c की वैल्यू अगर निकालनी है, तो आपको पता है कि ये जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर आप a में 90 डिग्री को ऐड करते हो, देन आल्सो यू विल गेट सेम आंसर। एंगल a हमारे पास कितना है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री में अगर आप 90 ऐड कर देते हो, 36 प्लस 90, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो भी आपका टोटल जो है वो 126 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगेन आई एम टेलिंग देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, सिर्फ आपका सिर्फ जो ट्रैक आप फॉलो कर रहे हो मेथड, दैट शुड बी राइट, any of the method you can use. Now next is question number 3. In question number 3, again draw the figure first. Figure is given to you, it is a triangle on the straight line. So you are given angle PQR is equal to angle PRQ. ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो कौन सी ट्रायंगल होगी आपके पास, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR।
then prove that it is given to you to prove angle PQS is equal to angle PRT. ये आपको प्रूव करना है. Now you can see angle PQS. ये वाला एंगल है बाहर की तरफ और ये वाला एंगल भी बाहर की तरफ. ठीक है जी. अब आपको यहाँ से क्लैरिटी हो रही है कि एक ट्राइंगल है. फर्स्ट पेयर इज इनसाइड द ट्राइंगल, सेकंड पेयर इज आउटसाइड द ट्राइंगल. So we can easily use here exterior angle property of triangle. You all must be knowing exterior angle of a triangle. अगर ये आपके पास triangle है, इसकी कोई एक साइड हम extend कर देते हैं. This exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. इस एंगल को छोड़ के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बारे में. अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? x plus y. It is not a new thing. Okay, how many students know this? You all must be knowing. Now start solution. Now you have to prove it. So prove. अब क्या करेगा? हमने पहुंचना है PQS पे, एक्सटीरियर एंगल पे. क्लियर? और स्टार्ट कहां से करना है? इंटीरियर एंगल से. व्हाटएवर यू आर गिवन इन ट्रायंगल PQR, angle PQR is equal to angle PRQ. It is given. ठीक है. अगर हम इस एंगल में एंगल P डाल देते हैं तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा. इज इट? ये जो एंगल है एंगल PQR, इसमें अगर हम एंगल P डाल देते हैं तो आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल है, ये एंगल Q है, दिस वन इज P. तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगा. सो हियर एंगल PQR plus angle P is equal to angle PRQ plus angle P. We can add any number to both sides of the equation. ठीक है. तो दोनों तरफ हमने एंगल P को ऐड कर दिया. किस लिए ऐड किया? To make the exterior angle. So which implies now here angle PQR plus angle PQR plus angle P is equal to this angle. Angle PRP plus here angle PRQ, this one plus angle P. तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल आ गया एंगल plus it is equal to angle PQS. Reason exterior angle property of triangle. Clear? तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो. अगर किसी को नहीं क्लियर है तो अलग से लिख सकते हैं. इन ट्रायंगल PQR एंगल PQS is equal to ये वाला एंगल एंगल P plus एंगल PRQ and एंगल PRT, ये वाला एंगल it is equal to angle P plus angle PQR. ठीक है जी. अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. इनको इंटरचेंज कर दो, इसको पहले ले आओ और इसको बाद में. ठीक है जी. या आप रीजन दे सकते हो. So therefore एंगल इसको इधर लिख दिया एंगल PQS is equal to angle PRT. Hence proof.